Hello everyone, welcome to Genic Education. So in this video series, we'll be discussing electrical machine for exclusively engineering services, BARC and ISRO. ठीक है. So already हमारे पास डेट है 18 जुलाई 2021, which is the tentative date for your engineering service prelim exam. Correct? So अभी आपके पास 5 months है. 5 months means it is 150 days. So you must be knowing in this 150 days you have to prepare exclusively for prelim exam. Those who are very interested for engineering services. Correct? So in this 5 months you have to cover the already existed syllabus in GATE, that is common to GATE and engineering services, plus some technical add-on like material science, communication. So you have to study these two subjects, material science and communication. And the very important thing which is completely new for all of you, that is your general studies, which carries 200 marks. So these two are equally important. For engineering services, everything is equally important. Let me tell you one thing, for your GATE exam, the weightage of core subjects and the common subjects are different. वहाँ पे आपका मेजरमेंट, वहां पे आपका वेटेज क्या था 2021 गेट क्वेश्चन, ओनली सिंगल मार्क, ओनली वन मार्क आस्क्ड इन द गेट एग्जाम इन 2021 फ्रॉम द मेजरमेंट सब्जेक्ट. बट इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसे कभी भी नहीं होता है. यू कैन एनालाइज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड. वहां पे हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट किया जाता है. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स आउट ऑफ 150 क्वेश्चन ओनली 15 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. इन एन एवरेज ओनली 15 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. सिमिलरली फ्रॉम योर एनालॉग एंड डिजिटल आल्सो 15 to 20 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. हियर weightage is different. Engineering service is completely different from the GATE. Also the preparation strategy, your planning is also completely different from the GATE exam. सो ये थोड़ा सा अलग है एग्जाम है. आप इसको हैबिचुएटेड होना पड़ेगा, आपके अंदर एक नया ट्रेंड डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू फोकस ऑन द जनरल स्टडीज पार्ट विच इज हैविंग 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. उसका भी वेटेज वेरी करता है इन बिटवीन 5 to 15%, and that is completely new from the starting day one. You should prepare for the general studies as well. If you are thinking that no sir, we will be preparing in the last 1 month or before 45 days we will be mastering our general studies, no, it is completely a wrong strategy. New thing means you should prepare from the earlier stage, okay? Otherwise you will be in tremendous amount of pressure in the end stage. So let me tell you one thing, for our electrical machines which is having 4 different sub chapters, DC machine, synchronous machine, transformer and induction. Already I have told you यहाँ पे आपका वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ऐसा नहीं कि DC मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन को नेग्लेक्ट किया जाता है. नो, दिस इज कंप्लीटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी दिया जाता है. Okay, so don't ignore, don't underestimate any subjects in technical and general studies. Correct or not? I'm specially focusing for your prelim exam. Okay, and this video is also simultaneously helpful for your BARC and ISRO. Correct or not? So we'll discuss our first discussion. Our first chapter for electrical machines will be your transformer. ठीक है. सो ट्रांसफार्मर से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल एंड अप विद द रोटेटिंग मशीन. ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक मशीन. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इन द ट्रांसफार्मर what you have studied in the GATE exam, that will be your base for the engineering services, I agree, but your preparation strategy should be different. That would be fundamental, your basic fundamental is static only, okay, बट वहां पे आपको एड ऑन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू योर इंजीनियरिंग सर्विसेज. व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज डिमांड, व्हाट बेसिकली द प्रीलिम एग्जाम, आप उसका क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है.
एंड अनदर थिंग, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. सो व्हाट शुड बी योर सजेशन, टेल मी. ऑब्वियसली आपको नॉर्मली जो कि इजियर कैलकुलेशन साइट में होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस में क्वेश्चन आएगा, सो ट्रांसफार्मर लॉसेस में बेसिकली हिस्टेरेसिस ईडी करंट लॉसेस आता है, वहीं पे फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है. तो वहां पे क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होगा प्रीलिम एग्जाम में कि आपका फ्लक्स इज वेरिएबल. ठीक है, आपका फ्लक्स वेरिएबल नहीं होगा, बेसिकली यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट होगा. करेक्ट. सो अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर आयरन लॉसेस व्हिच इज इक्वल टू AF plus BF square. Okay, so this is the hysteresis, this is the eddy current losses. So this type of, see, अगर यहां पे हम वेरिएबल फ्लक्स केसेस को लेंगे, डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा. करेक्ट है. सो ये नहीं आने वाला है क्योंकि यहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. एंड अनदर पॉसिबिलिटीज जो कि गेट एग्जाम में हम नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दैट इज वेरी कंसेप्चुअल थियोरिटिकल क्वेश्चन, जो कि गेट एग्जाम में इग्नोर किया जाता है. गेट एग्जाम इज ओनली योर, गेट एग्जाम ऑलवेज टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. गेट एग्जाम ऑलवेज टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. This is the definition of GATE exam, because GATE exam is only meant for higher studies. Of course, nowadays public sectors are recruiting from the GATE exam because it is a standard exam. But which organization is conducting this exam? That is IITs, and IITs are meant for research and development. सो इसीलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट किया जाता है. करेक्ट. वहां पे आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्किल क्या है, दैट इज टेस्टेड. बट इंजीनियरिंग सर्विस में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली टेक्निकल मैनेजमेंट को संभालना है. करेक्ट और नॉट. सो टेक्निकल मैनेजमेंट को संभालना है, इसीलिए आपका थियोरिटिकल एस्पेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इतना इंपॉर्टेंट है. So engineering services test your complete engineering skill. ठीक है, यहां पे आपका complete engineering skill चेक किया जाएगा. That's why they ask you question from your general current affairs. क्योंकि current affairs क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर एक मैनेजमेंट में हो, आपको करंट अफेयर्स पता नहीं है, what are the current scenario of economics of your country, what is the relation between, what is the new technology evolved, उसके बारे में अगर पता नहीं है, then how can you be a technical manager, tell me. So you have to develop the ये basically engineering service आपका complete engineering skill को टेस्ट करता है. करेक्ट है. सो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट, मेरा अल्टीमेट कहना यही है, इंजीनियरिंग स्किल मीन्स बोथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यहां पे प्रॉब्लम्स प्लस थ्योरी. करेक्ट. सी, हम लोग ट्रांसफार्मर में अब एक बार सोचिए, ट्रांसफार्मर में आज तक गेट एग्जाम में उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में क्वेश्चन आया है? नेवर. दे विल नेवर आस्क द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स से आ चुका है. ठीक है, यहां पे कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. सो विल बी डिस्कसिंग बोथ प्रॉब्लम्स प्लस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स दैट टू विदाउट कैलकुलेटर. सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज प्रॉब्लम्स, स्ट्रिक्टली दोज प्रॉब्लम्स which you can solve without having calculator. एंड यहां पे एक चीज, दूसरा चीज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स के लिए आप गेट का प्रीवियस ईयर 1 मार्क क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली 1 मार्क क्वेश्चन को आप फॉलो कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर प्लस गेट 1 मार्क क्वेश्चन. नेवर गो फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. 2 मार्क्स क्वेश्चन लेंदियर होता है, वहां पे बहुत सारे एनालिसिस होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, लेकिन दैट इज फॉर योर कन्वेंशनल पार्ट, नॉट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट. सो अभी मेनली
सी अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं करेंगे स्टेज 2 नहीं जा पाएंगे, करेक्ट है। सो इन ऑर्डर टू अपियर इन द स्टेज 2 यू हैव टू फर्स्ट क्लियर द स्टेज 1। सो स्टेज 1 को आपको फोकस करना है। सो यू हैव टू फोकस theory problems. Theory weightage is 50%, problems weightage are also 50%, but in the GATE exam the theoretical weightage I think 20%, maximum 20%, but for your engineering services this theoretical aspect is 50% and problems are also equally important, that is also weighs for 50% marks, correct hai? So without wasting our time, let's discuss the transformer. Okay, so write down the heading transformer. So what is transformer, tell me? Already you have studied. Basically यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। Already you have appeared for GATE exam, अभी हम उसको रिवाइज करेंगे एंड आपको मेरा टारगेट क्या रहेगा कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम के हिसाब से आपको एक्वेंटेड करना है एंड साइमल्टेनियसली बीआरसी में भी वही क्वेश्चन आता है। बीआरसी का भी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा, वहीं पे भी आपको सेम चीज करना है, करेक्ट है। सो राइट डाउन द हेडिंग ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर मतलब क्या होगा, यहां पे हम डिस्कस करेंगे बोथ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, करेक्ट। सो फर्स्ट विल डिस्कस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, सो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हम एनालिसिस करेंगे। सो बेसिकली आपको एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैथमेटिक्स मीनिंग इट इज ए सेट्स ऑफ इक्वेशन, करेक्ट है। सेट्स ऑफ इक्वेशन के थ्रू ही आप एनालाइज करेंगे। सो सेट्स ऑफ इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सी सेट्स ऑफ इक्वेशन ये ऑलरेडी आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ चुके हैं, दोज आर केवीएल एंड केसीएल। केवीएल एंड केसीएल से ही, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, वहीं से आपका सेट्स ऑफ इक्वेशन होता है। वही सेट्स ऑफ इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करेंगे देन ओनली विल बी कवरिंग द ऑल मतलब होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द एनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। सो सेट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज केवीएल केसीएल वो कहां पे आएगा, जब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट होगा। You'll see physical appearance of transformer is like a box, ठीक है। That is see अगर आप जिस कॉलेज में हैं, आपका अगर अपार्टमेंट में अगर एक ट्रांसफार्मर है, सो दैट इज जस्ट लाइक ए बॉक्स, ठीक है। लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज दैट ट्रांसफार्मर, आई हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड आई हैव टू एनालाइज। सो इक्विवेलेंट सर्किट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। So tell me what is the equivalent circuit of the transformer. So before that tell me what is the use of transformer. Mainly हम ट्रांसफार्मर को क्यों यूज करते हैं, either to step up or step down the voltage. So वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन लाइन, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। वहीं पे आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। सो मेनली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस एंड इट इज ए मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस। सो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द आइडियल ट्रांसफार्मर हियर व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। This is the ideal transformer having 2 turns. This is the primary side. This is the primary side, and this is the secondary side. This is the equivalent circuit of an ideal transformer. Let me write here ideal.
ideal transformer. This is the voltage source having frequency F. This is a coupled circuit, so this is the symbol. Okay, correct. Now this is the dotted terminal, dotted polarity. What is the use of dot polarity? You must be knowing dot polarity क्यों यूज होता है? वो पोलरिटी को शो करता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, विल डिस्कस लेटर ऑन. करेक्ट. सो दिस इज द primary side of the ideal transformer, this is the secondary side of the ideal transformer. So tell me, out of this primary or the secondary, which one is low voltage side and which one is high voltage side? LV side क्या है and HV side क्या है? So I cannot predict whether the primary is LV or HV. See, I cannot predict, but primary side क्या होता है? हमेशा the side at which voltage is applied, that is called your primary side. Voltage is applied. And secondary side क्या होगा? That is your load side. So in the interview, suppose the interviewer asked, so in a transformer, whether the LV side is the primary one or secondary one, I cannot predict. Maybe the primary will be LV or HV, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Correct. Similarly, the load side can be the LV one or the HV one. Anyone is possible. Anything is possible here. ठीक है. But the side at which the coil at which primary is applied is called your primary. Sorry, the coil at which voltage is applied is called primary one. The side at which load is connected is called secondary side. ठीक है. So in the transformer, two coils are there and they are magnetically coupled and electrically isolated. Here there is no electrical connection. यहाँ पे electrical connection है नहीं है, but magnetically coupled means a flux is common to both the primary and the secondary. Some flux is common to both the primary and the secondary. Correct है. So this thing already you have taught in the ideal transformer. So tell me, यहाँ पे कुछ fundamental quantity हम I will tell some fundamental things here. So what is N1 is to N2? So tell me, what is N1? N1 is the number of turns in the primary side. N2 is the number of turns in the secondary side. Correct. So basically in this today is the first lecture, so we'll be discussing some basics of the transformer. Don't bother about the question practice, we'll discuss in the next class. ठीक है. आज बेसिक्स है, दैट इज द फर्स्ट क्लास. सो आज का क्लास थोड़ा सा हम लिटिल बिट ज्यादा टाइम देंगे और बहुत छोटे छोटे चीज डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास. जब हम डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेंगे विल डिस्कस दोस थिंग. करेक्ट. सो N1 is the number of turns in the primary side and N2 is the number of turns in the secondary side. Correct. So tell me, what do you mean by turns ratio? Turns ratio is it is defined by, इसका सिंबल क्या है? We denote by A. So turns ratio is nothing but your number of turns in the primary side by number of turns in the secondary side. This is called the turns ratio. Similarly, what is transformation ratio? Transformation ratio is defined as this is N2 by N1. इसका सिंबल क्या है? K and इसका फॉर्मूले क्या है? N2 by N1. और simply I can write here 1 by A, inverse of the turns ratio. Correct. Now ये ट्रांसफार्मर
See, I have not at all started discussion on practical transformer. What I have discussed so far is your ideal transformer. Simply, I don't know anything. I know one thing, that is transformer is a coupled circuit. वहां पे दोनों वाइंडिंग्स होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड ऑल्सो आई नो दैट प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड सेकेंडरी साइड में हम हमेशा लोड को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस मच आई नो. This much I know. And now I just started what is trans ratio, what is transformation ratio. I have discussed this much thing so far. Okay. Now tell me, when the transformer is said to be step up transformer. Suppose the primary side voltage is 230 volt. तो step up मतलब क्या है? जब voltage boost होगा. Suppose it is 1100 volt in the secondary side. This is the case where the case when the secondary side voltage is more than the primary side, that is called your step up transformer. ठीक है, this is called your step up transformer. But let me tell you one thing. आप टॉर्स रेशियो से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? जब आपका टॉर्स रेशियो इज मोर देन 1 होगा, देन क्या होगा, एंड जब टॉर्स रेशियो लेस देन 1 होगा तब क्या होगा? जब टॉर्स रेशियो लेस देन 1 होगा तो डेफिनेटली N1 by N2 अगर है तो डेफिनेटली यहां पे N2 का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर N1. सो N2 का वैल्यू अगर ज्यादा है then definitely number of turns in the secondary is more, so the EMF induced here will be more. So turns ratio से आप define कर सकते हैं whether the transformer is step up or step down, correct? So A is less than 1 is regarded as step up, A is more than 1 is regarded as step down, correct है? Correct? So this is all about your ideal transformer. So I have a question to you. So can you tell me what is the efficiency of this ideal transformer and what is the fluctuation in voltage? Fluctuation in voltage meaning, is there any drop in the transformer? Is there any drop inside the transformer? See, my first question is that what is the efficiency of the ideal transformer, and second question is what is the drop in the transformer? Okay, so already I told you transformer is a electrical device. So एक electrical device अगर है, so remember one thing, network theory में resistor, inductor and capacitor आप already पढ़ चुके हैं. These are the passive element. These are the passive element in the basics of network theory. So passive element में अगर power flow हो रहा है then definitely some voltage drop will be there, correct है? So voltage drop, what is the voltage drop in the ideal transformer? My question is that one. So voltage drop को हम क्या डिनोट करते हैं? बेसिकली हम वोल्टेज रेगुलेशन से डिनोट करते हैं. वोल्टेज रेगुलेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप टू आर डिफरेंट थिंग. Voltage regulation मतलब what is the fluctuation in voltage, what the fluctuation means, what is the difference between this input and the respective primary side voltage in the secondary. Okay, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज है सप्लाइड वोल्टेज वो इंड्यूस होगा उसके रेफरेंस में. दिस इज द टर्म. सी लोड में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा and the secondary voltage, induced voltage, suppose the secondary induced voltage is E2 and the load voltage is V2. So मेरा कहना है what is the, see voltage regulation means what is the fluctuation between E2 and V2. ये यहाँ पे क्या होगा, कितना होगा, how much, what is the magnitude of the fluctuation between E2 and V2. And my first question was what is the efficiency of the ideal transformer. Okay, so let me tell you the efficiency of the ideal transformer. See, ideal means completely ideal. So ideal केस में कोई भी चीज नहीं होता है.
Ideal means 100%. Suppose you planned for, sir, I have planned to study 10 hours per day till the prelim exam. That is till 17th July I have to study 10 hours per day. So ideal case मतलब क्या होगा, 150 days आपको 10 hours पढ़ना होगा and total कितने पढ़ेंगे आप, 1500 hours. That is the ideal case. But tell me, any of you ideal? आपका टारगेट रहेगा 10 आवर्स, ठीक है, आपका टारगेट रहेगा 10 आवर्स, बट मे बी आपका 3-4 आवर्स में ऑल आउट हो सकते हैं. करेक्ट है, 3-4 आवर्स में मे बी यू आर इन डीप स्लीप. करेक्ट है. सो आइडियल मतलब जो है वही करना है. करेक्ट. सो कैन यू टेल मी, वी आर इन ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड आइडियल? नो, बट स्टिल फर्स्ट आवर रेफरेंस इज ऑलवेज एन आइडियल वन. हमारा रेफरेंस हमेशा आइडियल है. अगर प्रैक्टिकल हमारा रेफरेंस होगा देन हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइडियल को अगर हम रेफरेंस लेंगे देन डेफिनेटली हम इंप्रूव करते रहेंगे. कभी भी हम बेस्ट नहीं हो पाएंगे, हम बेटर ही करते रहेंगे एंड यही होना चाहिए. हम डे बाय डे यू विल कीप ग्रूमिंग एंड डे बाय डे हम अपने आप को एक बेहतर फॉर्म में ला पाएंगे. बेस्ट कभी नहीं हो सकता है. अगर कब पॉसिबल है, जब आपका रेफरेंस होगा एक आइडियल केस. सिमिलरली इन ट्रांसफार्मर आल्सो हमारा रेफरेंस क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर. सो आइडियल मतलब यहां पे एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी होगा 100% एंड वोल्टेज रेगुलेशन फ्लक्चुएशन यहां पे 100% अगर होगा वो आइडियल होगा. टेल मी, नहीं होगा ना. करेक्ट. सो यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, 0%. ओके, वोल्टेज रेगुलेशन 0%. लेकिन ये दोनों टर्म को आप बॉक्स करके लिख दो, ठीक है, इसको बॉक्स फॉर्म में कर दो. ओके. सो हियर इसका बहुत सारे सिग्निफिकेंस है. बस वही ये दोनों चीज ही हमको मजबूर करता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने के लिए डिटेल में. इसी के चलते आप इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हो, इसी के चलते आप लॉसेस पढ़ते हो, इसी के चलते आप टेस्टिंग करते हो, इसी के चलते आप नॉन लीनियरिटीज इन द ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, इसी के चलते आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हो, एफिशिएंसी पढ़ते हो. ये दोनों चीज के लिए. ओके. सो राइट डाउन दिस 2 पॉइंट एंड विल डिस्कस what are the cases in the practical transformer. What will be the case in the practical transformer? Okay. So let's discuss the first point. The first point in the box item, I will rate this as 5 star, these 2 points as 5 star. Why? You will not understand here. After my discussion you can understand why this one is 5 star topic. Okay. So tell me, what is the definition of efficiency? Efficiency means obviously for any system output divided by input, but we are dealing with an electrical circuit. So we are dealing with the electrical circuit. So what is the efficiency formula? It will be the output power divided by input power. Okay, but we know out input power is nothing but output power plus losses. आउटपुट पावर प्लस लॉसेस. करेक्ट है. सो आपका एफिशिएंसी 100%. सी एफिशिएंसी इन परसेंटेज मीनिंग क्या होगा, यहां पे आपको 100% मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 100% मल्टीप्लाई करना है. सो टेल मी, व्हेन द एफिशिएंसी बिकम 100%, व्हेन द लॉसेस बिकम 0, then only you will be getting 100% efficient system. Am I correct or not? You will be getting an 100% efficient system when the losses is 0. I am not dealing with which type of losses.
नाउ विल बी डीलिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस, बट आपका लॉसेस 0 होगा तब जाके एफिशिएंसी क्या होगा, 100% होगा. ओके, दिस इज द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर. सो आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या है, 100%. एंड इसका हिडन फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, लॉसेस इज 0. इसको ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, लॉसेस इज 0. इसका मीनिंग यही है. ओके, गॉट द पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ कम टू द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होगा. अच्छा आप बताओ, एक लाइन है, एक लाइन है, इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा देन I2R लॉसेस होगा कि नहीं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ए कंडक्टर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम. कॉपर वाइंडिंग कहां पे यूज होता है, राइट डाउन. कॉपर वाइंडिंग इज यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर एंड एल्यूमिनियम वाइंडिंग इज यूज्ड इन योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. DX means distribution transformer, TX means power transformer, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर. ओके, ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर यूज होगा उसको हम पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं. सो ऑब्वियसली उसका कुछ कंडक्टिविटी होगा, रेसिस्टेंस होगा, देन ऑब्वियसली ओमिक लॉसेस और I2R लॉसेस विल बी देयर because of conducting properties of the winding. But in case of your and another losses, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कोर होता है. सो मैग्नेटिक कोर में वहां पे फ्लक्स का रोल होगा. अगर फ्लक्स का रोल है देन ऑब्वियसली द लॉसेस ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड कोर लॉस और आयरन लॉसेस आएगा. सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस आएगा एंड आयरन लॉसेस आएगा. सो लॉसेस इज नॉन जीरो. I repeat, losses is non-zero for your practical transformer. Okay, so efficiency क्या होगा, efficiency क्या होगा, obviously not 100%, it will be less than 100%. Am I correct or not? So what we have to study, we have to study the losses in the transformer, losses in transformer and efficiency of the transformer. So we have to calculate the different losses, उसका magnitude and efficiency for different case हम निकालेंगे. करेक्ट है. सो ये दोनों चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. अदरवाइज अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो लॉसेस 0 है एंड एफिशिएंसी आपका 100% है. नो नीड टू स्टडी दिस 2 पॉइंट सेपरेटली. एंड आई थिंक ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑलरेडी गेट एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, ठीक है. एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली. ओके, सो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलरेडी इसी साल लॉसेस का एक क्वेश्चन आ चुका है, राइट. गेट एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, लॉसेस दैट इज आयरन लॉसेस के ऊपर. करेक्ट है. नाउ लेट मी टेल यू. नाउ सी, मेरा टारगेट क्या था, एफिशिएंसी निकालना था. सो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या जरूरी था, लॉसेस. आई नीड द वैल्यू ऑफ योर लॉसेस. व्हाट इज द पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर. ओके, नाउ टेल मी losses, how to find losses. Big question is how to find the losses. How to find losses. So many students might be thinking, sir, we know the formula for losses, so we can directly find the value of losses. Very nice. Your answer is absolutely correct. But my question is that already you have formula, but from
फॉर्मूला के लिए भी आपको डेटा चाहिए ना. सपोज आई नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. आई नो दिस फॉर्मूला. सो इसके लिए भी आपको मास चाहिए एंड एक्सेलरेशन चाहिए. करेक्ट है. यहां पे भी ये व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, उसके लिए भी आपको मास चाहिए एंड एक्सेलरेशन चाहिए. तो इसका तो डेटा तो अल्टीमेटली आपको चाहिए ना. तो वही डेटा कहां से आएगा, वही डेटा कहां से आएगा. ऑलरेडी यू नो द फॉर्मूला, आई एग्री, बट वही डेटा आपको कहां से मिलेगा. सो द क्वेश्चन इज, द आंसर इज बाय performing testing, by performing the testing. Okay, so what is testing, what do you mean by testing? So testing is in order to, testing करने के बाद आपको क्या मिलेगा, the losses of the transformer and another important thing, the branch parameters. The branch parameters, what are the branch parameters, we will discuss in the later class. Okay, लेकिन ब्रांच पैरामीटर्स में दोनों चीज होता है. वन इज नो लोड ब्रांच, दैट इज कॉल्ड नो लोड और शंट ब्रांच, एंड अनदर इज सीरीज ब्रांच, दैट इज ड्यू टू द लॉस कंपोनेंट, दैट इज ड्यू टू द लोड कंपोनेंट. सीरीज ब्रांच लोड कंपोनेंट के लिए आता है. सो बाय परफॉर्मिंग द टेस्टिंग इन द ट्रांसफार्मर, I can draw the equivalent circuit of the transformer as well as I can find the losses in the transformer. So losses and equivalent circuit दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, I have to perform the testing in the transformer. Okay. So next thing, losses कहां से मिलेगा, by performing the testing in the transformer. So you might be knowing what are the type of testing in the transformer. Those are open circuit test and short circuit test. Let me tell you briefly, we'll discuss while discussing the testing in detail. So open circuit test में क्या होता है, लोड को हम हटा देते हैं. करेक्ट, लोड हट गया. ठीक है. So open circuit test result always gives the data of iron losses. Correct? And no load branch parameter. No load branch parameters. Correct? So this is all about your open circuit test. सिमिलरली शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे. सेकेंडरी को अगर शॉर्ट कर देंगे सो क्या हो जाएगा, यहां पे टर्मिनल वोल्टेज V2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर V2 जीरो होगा, हैवी करंट फ्लो होगा. क्योंकि ये डेड शॉर्ट सर्क्यूट है, तो इंपेडेंस सिन बाय द वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी वेरी लेस. अगर वेरी लेस होगा then very high current will flow. Short circuit current will be very high. So short circuit test gives the result of copper losses and series branch parameter. Correct? Okay, so this is all about your testing in the transformer. Okay, so पहला पॉइंट जो 5 स्टार रेटिंग वाला एक बॉक्स था, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या था, एफिशिएंसी इज 100%. हिडनली इसका मीनिंग क्या होगा, लॉसेस इज 0. सो लॉसेस कैसे फाइंड करेंगे, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस 0 नहीं होगा. सो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय टेस्टिंग इन द ट्रांसफार्मर. एंड वही डेटा को हम कहां पे यूज करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए. सो ऑब्वियसली यहां पे एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%, नॉट एट ऑल 100%. एम आई करेक्ट और नॉट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? टेल मी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, दिस इज रिगार्डिंग योर फर्स्ट पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर. This is the first point. First point is over. Now
now come to voltage regulation. Come to voltage regulation. Tell me, what do you mean by voltage regulation? What is the meaning of voltage regulation? So let me test you whether you people are watching this video seriously. How many of you are very sincere? Let me test you. So I will ask you a question and you have to reply me in the comment section. ठीक है? How many of you are sincere? यहाँ से पता चलेगा. उसके बाद मेरा भी क्लासेस ऐसा ही रहेगा. आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, हाउ मच यू आर सीरियस फॉर दिस एग्जाम, देन ओनली मेरा इनपुट भी उसके हिसाब से बढ़ेगा. अदरवाइज नॉर्मली हमारा क्लासेस रहेगा, ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ योर क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड कंटेंट भी ऐसा ही रहेगा. लेकिन जो एक्स्ट्रा इनपुट होता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, जो कि आउटर इनर मोटिवेशन हमेशा रहता है, हमेशा इनर मोटिवेशन रहता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर से अगर थोड़ा सा कैटलिस्ट मिल जाएगा तो एक्स्ट्रा इनपुट मिलता है. करेक्ट और नॉट? सो आपका दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूं. ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट होगा थ्रू कमेंट सेक्शन. सो इन एवरी लेक्चर्स I'll be asking a question, maybe conceptual question, maybe a numericals, लेकिन उसका रिप्लाई आपका होना जरूरी है in the comment section. So today's question is, write down the question and please reply me in the comment section. Suppose एक ट्रांसफार्मर है, this is 230 by 1115 volt transformer. So this is a step down transformer. Okay, so this is a AC voltage. You know, transformer operates on AC. But my question is that if you excite the high voltage side with a 200 volt DC source, what will be the consequence? What will be the consequence? Okay, so a transformer having 230 volt divided by 115 volt rating given है, voltage rating given है. But my question is that if you excite the high voltage side with a 200 volt DC source, what will be the consequence? And यहाँ पे दोनों पॉइंट्स है. सपोज 2 सेकेंड के लिए आप एक्साइट किए एंड बी पॉइंट है 2 मिनट्स के लिए एक्साइट की, तो क्या होगा? दोनों केसेस में क्या होगा? अगर 2 सेकेंड के लिए हम एक्साइट किए 200 वोल्ट तब क्या होगा, एंड 2 मिनट्स के लिए अगर एक्साइट किए 200 वोल्ट तब क्या होगा? सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग दिस सीरियसली एंड replying in the comment section. So pause this video and tell me in the comment section. ठीक है? थिंक एंड टेल. यहां पे आपको इंटरव्यू भी देना होगा एंड दैट विल बी टेकन बाय यूपीएससी बोर्ड. ओके, सो इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनीवे, हम पहला पॉइंट ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे. नाउ कम टू द वोल्टेज रेगुलेशन. करेक्ट. सो वोल्टेज रेगुलेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज.
So already told you what is the fluctuation in voltage, that is E1 dash minus V2 divided by E1 dash, करेक्ट। आइदर हम प्राइमरी के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लेंगे और सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लेंगे, बट नॉट प्राइमरी नॉट सेकेंडरी। एक दोनों वोल्टेज आइदर प्राइमरी के रेफरेंस में होगा या सेकेंडरी के रेफरेंस में होगा। सी वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट योर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। सो हमेशा कोई भी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो क्या होता है, 1:1। उसका प्राइमरी साइड वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमेशा सेम होता है एंड उसका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है। बट नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर में उसका फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज होगा, दैट इज द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट एंड आउटपुट के बीच फ्लक्चुएशन होगा, बट जो फ्लक्चुएशन होगा उसको हम डायरेक्टली VI माइनस VO नहीं करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, आइदर VI को हम सेकेंडरी पे लाके करेंगे एंड और सेकेंडरी वोल्टेज को हम प्राइमरी साइड में रेफर करके करेंगे। एक प्राइमरी में एक सेकेंडरी में हम फ्लक्चुएशन नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट द फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मीन्स क्या है, दैट इज हम आइदर उसको टोटल को हम प्राइमरी में करेंगे या टोटल को हम सेकेंडरी में करेंगे, देन फ्लक्चुएशन हम निकाल सकते हैं। ओके, किसका फ्लक्चुएशन, टेल मी, यहां पे किसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कब होगा? वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कब होगा? जब वोल्टेज का कुछ फ्लक्चुएशन मीनिंग कभी एक ड्रॉप होगा, ड्रॉप और राइज, ठीक है। जब ड्रॉप होगा या राइज होगा वोल्टेज किसी भी एलिमेंट में, तब जाके वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा। ओके, सो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी यहां पे कोई भी एलिमेंट था जहां पे ड्रॉप हो सकता है? नहीं था आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं था, क्योंकि अब बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पहला चीज है ये एक वाइंडिंग है। वाइंडिंग अगर है उसका एक कंडक्टिविटी है, सो इसका कंडक्टिविटी है, तो यहां पे वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होगा। अगर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है देन डेफिनेटली वाइंडिंग रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी वन, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी के लिए हम कंसीडर किए, तो I2R2 ड्रॉप होगा। कहां पे होगा? इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ऑब्वियसली इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? सो दिस इज द फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप। अनदर वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू द लीकेज इंपैडेंस, लीकेज रिएक्टेंस। सो लीकेज रिएक्टेंस कब आएगा? टेल मी। ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, सो पहला वोल्टेज है पहला वोल्टेज ड्रॉप कहां पे होगा? वाइंडिंग रेसिस्टेंस पे। लेट्स से सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है R2, तो रेसिस्टेंस ड्रॉप इन द सेकेंडरी साइड क्या होगा? I2R2। नाउ लेट मी टेल अबाउट व्हाट इज लीकेज रिएक्टेंस। सी, ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ कोर, दिस इज द कोर। So first of all tell me why I need a core? Why I need a core? See, in the winding is placed in the core, placed around the core. Okay, so winding अगर है एंड इसको हम अगर एक्साइटेशन दे दिए, एक्साइटेशन अगर देंगे यहां पे MMF प्रोड्यूस होगा इन बिटवीन दिस टू पोल एंड ये MMF क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। पहले MMF आएगा देन फ्लक्स आएगा। सो फ्लक्स, सी, ऑलवेज करंट प्रेफर ए लेस रेसिस्टेंस पाथ। आई रिपीट, ऑलवेज करंट प्रेफर्स ए लेस रेसिस्टेंस पाथ, but flux always prefers a less reluctance path. The analogy of resistance in the magnetic circuit is reluctance. Okay, resistance is given by R is equal to
रो रो L by A. ओके, रो इज द रेसिस्टिविटी, करेक्ट है. बट इन द मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस इज गिवन बाय L by mu into A. Mu is the permeability. Okay, mu is the permeability. So what I told you, मैग्नेटिक सर्किट क्यों है? क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होगा उसको हमेशा लेस रिलक्टेंस पाथ चाहिए. तो अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक, सी एयर इज ऑल्सो ए पैरामैग्नेटिक मेटेरियल, लेकिन एयर का उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है. सो रिलेटिव परमेबिलिटी अगर कम होगा, म्यू, रिलक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, करेक्ट. तो मुझे अल्टीमेटली रिलक्टेंस कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये परमेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा ट्रेमेंडसली. इसको काफी टाइम्स अगर फोल्ड करेंगे तो रिलक्टेंस क्या होगा? बहुत ही कम होगा. अगर रिलक्टेंस कम होगा देन फ्लक्स विल प्रेफर ए लेस रिलक्टेंस पाथ. एंड अनदर थिंग लेट मी टेल यू, हमेशा करंट फ्लो होता है, फ्लक्स कभी भी फ्लो नहीं होता है. आई रिपीट, फ्लक्स कभी भी फ्लो नहीं होता है. फ्लक्स हमेशा सेटअप, क्या? सेटअप. फ्लक्स हमेशा सेटअप होता है, फ्लो नहीं होता है. दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है. सो फ्लक्स हमेशा सेटअप होगा, करेक्ट. नाउ मुझे अल्टीमेटली लेस रिलक्टेंस पाथ मिल गया तो क्या होगा? यहां पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू सेटअप हो जाएगा, ये पाथ में सेटअप हो जाएगा, ठीक है. इन दिस पाथ इट विल बी सेटअप. एंड यहां पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लगा सकते हैं. एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर फैराडेज लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, करेक्ट. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमको क्या चाहिए? एक फ्लक्स चाहिए. सो फ्लक्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा. कैसे? थ्रू दिस इंडक्टर, थ्रू दिस कॉइल. एंड ये कॉइल में जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसको हम एक लेस रिलक्टेंस पाथ अगर देंगे देन ऑब्वियसली फ्लक्स सेटअप हो जाएगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पे आप एक लेस रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दिया, आई एग्री. बट यहां पे कुछ फ्लक्स क्या होगा? कुछ फ्लक्स ऐसे होगा कि ये यहां पे एक लेस रिलक्टेंस पाथ की थ्रू सेटअप हो जाएगा. दैट इज थ्रू एयर, दैट इज थ्रू एयर. एयर के थ्रू ये एक लेस रिलक्टेंस पाथ मिल जाएगा, ठीक है. This is the flux that is called your working flux or main flux, working and main flux, and this is called your leakage flux. Okay, this is called your leakage flux. So हमेशा आपको ये चीज पता होगा कि एक कॉइल का इंडक्टेंस होता है, that is called your self inductance, ठीक है. That is called your self inductance L. तो self inductance, see, inductor is linear or non-linear? Tell me. See, our resistor is a linear. Inductor is also linear. How? Li is equal to N phi. This formula shows that inductor is linear 1. This formula shows that inductor is linear 1. So यहां पे टोटल जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, let me tell you, phi total is nothing but your main flux for plus leakage flux in the primary side. Okay, this is the total flux produced. ये डिवाइड होगा मेन फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स में. सो ये फ्लक्स के चलते आपका इंडक्टेंस भी आएगा. सो क्या है ये? अगर आपका प्राइमरी साइड है इसका सेल्फ इंडक्टेंस आएगा L एंड LM आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस आएगा L1. ओके, अगर इंडक्टेंस है आपके पास तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पे रिएक्टेंस आएगा XM एंड लीकेज रिएक्टेंस आएगा XL1. सो ये लीकेज रिएक्टेंस को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, हमको लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, सो लीकेज रिएक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू द सीरीज ब्रांच.
एंड नॉर्मली हम कैसे डिनोट करते हैं लीकेज रिएक्टेंस को x1 से। ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, हम इसको डिटेल में जाने का जरूरी नहीं है। ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी जो मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट है वहां पे आप अच्छे से पढ़े होंगे, ये मेरा एजम्पशन है, करेक्ट। वहां पे ही ये इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। एंड इसी साल एक क्वेश्चन भी आया था, रिमेंबर, एक ट्रांसफार्मर था, ये एक ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे रेसिस्टर था, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स एक्साइट कर रहा था। गेट क्वेश्चन में 100 किलो हर्ट्ज यहाँ पे वोल्टेज गिवन है V पीक टू पीक, एंड यहाँ पे भी वोल्टेज गिवन है V पीक टू पीक, एंड इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया था। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नहीं था, ये मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट का क्वेश्चन था। तो मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। हाउ टू मेरा टारगेट है हाउ टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। आई हैव द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द म्यूचुअल कपलिंग सर्किट, सो आई ऑलरेडी मैनेज टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाए होंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट का। ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नहीं था, इसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहना क्या है, हम यहां से ये टर्म आ गया, ये टर्म कहां से डिराइव हुआ, यही म्यूचुअल कंसेप्ट से, म्यूचुअल कपलिंग सर्किट से ये कंसेप्ट डिराइव हुआ, ठीक है। तो पहला ड्रॉप क्या था, I2R2। सेकेंड ड्रॉप क्या होगा, द लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, दैट इज I2X2। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी साइड। सो यहां पे दोनों ड्रॉप्स आएगा। सी मेरा टारगेट क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन, फ्लक्चुएशन कब होगा, जब वोल्टेज ड्रॉप होगा। पहला वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टेंस के थ्रू, सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप लीकेज रिएक्टेंस के थ्रू, दोनों मिल गया। सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन होगा, यस सर होगा, डेफिनेटली होगा ना, करेक्ट है। सो फ्लक्चुएशन होगा मीनिंग your voltage regulation will be 0% or it will be a finite quantity. Tell me, it will be 0%, कभी नहीं होगा, it will be a finite quantity. So we need to study the voltage regulation. We need to study the voltage regulation. Next, ये चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट है। एंड अनदर थिंग, सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू स्टडी फॉर द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सो वी मस्ट स्टडी द मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, modeling of practical transformer. And also for engineering services, very important thing is constructional features. Okay, so these are the point we have to study: constructional features, modeling of practical transformer, then losses, testing, efficiency, voltage regulation. This is all about your single phase transformer. And also we'll discuss the very very important thing, that is, let me tell you, so हम ये डिस्कस करेंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे एंड ऑटो ट्रांसफार्मर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सो आज का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन, hold on, let me erase. So all of you are feeling comfortable for GATE exam? GATE एग्जाम के लिए पॉजिटिव हैं आप उसका रिजल्ट के लिए? टेल मी। ओके, लीव इट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, this is a transformer. This is a single phase transformer. I excited
through a sinusoidal voltage. Okay, this is the sinusoidal voltage and इसका टर्न्स रेशियो है N1:N2 and this is the current. Suppose this one is open circuited. Okay, this is the turns ratio. यहाँ पे डॉटेड है E1 E2. So my question is that what is the primary current? I1 का शेप क्या होगा? What will be the shape of I1? So sir, it is very simple one. How? Sir, obviously input voltage अगर साइनोसॉइडल है तो obviously इनपुट करंट भी तो साइनोसॉइडल होगा. हाउ? नेटवर्क थ्योरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये एक इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस JX1 है एंड दिस इज द करंट वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज द करंट. सो I1 विल बी हाउ मच? V1 by JX1. सो V1 को सपोज मान लो Vm sin ओमेगा t ले लेते हैं एंड X1 को हम X1 ही लेते हैं. इसका मैग्नी एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. सो इट विल बी Im sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री. ओके, Im sin ओमेगा t माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा t. करेक्ट है? जो भी हो, हमको ये इंटरेस्ट नहीं है. हमको इंटरेस्ट ये है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सप्लाइड करंट. व्हाट इज द शेप ऑफ द सप्लाइड करंट? So the answer is coming here, shape is sinusoidal, but I am not at all agreed with this answer. The shape of the current will be different. So my question is that what is the shape? What is the shape of input current I1? Shape of input current क्या होगा? You have to tell me. So this is the second question. I'll stop this class after 2 minutes. So in this session we discussed the basics of the transformer. What are the types of concept we have to discuss. यहाँ पे हम क्या इसके बेस्ड में ही हम सब कुछ डिराइव करेंगे. ये हमारा बेस है. एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बेस था. किसका? आइडियल ट्रांसफार्मर का. लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है एंड हमको क्या पढ़ना चाहिए एंड क्यों पढ़ेंगे, ये सारे चीज हम डिस्कस कर लिए हैं. एंड ऑल्सो आई आस्क्ड यू 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक डीसी एक्साइटेशन का क्वेश्चन था एंड दूसरा शेप ऑफ द करंट फॉर नो लोड. मीनिंग नो लोड करंट ही होगा. ये नो लोड करंट ही होगा अल्टीमेटली. सो नो लोड करंट का शेप क्या होगा. लेकिन यहां पे हमारा क्या हो रहा है? साइनोसॉइडल आ रहा है. बट आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विथ योर आंसर. ये दूसरा आना चाहिए. सो आपके हिसाब से साइनोसॉइडल से इसका शेप क्या होगा? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन गिव मी सजेशन हाउ टू what type of things you want to entertain in the class. Okay, please reply. Before that, practice is very important for your engineering service. Already I am repeatedly telling you, you have to practice previous year question. Without previous year question you never going to perform very nice in the engineering service prelim exam. Okay, so thank you all of you for being with me. Okay, and another important thing कि ऑलरेडी हमारा जेनिक ऐप है which is available on the Play Store. Through those app you can access our live courses, G3 courses. Okay, and ATC एयरपोर्ट अथॉरिटी का ATC कोर्स आप परचेज कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी वहीं पे अवेलेबल होगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रहार जो SSC जेई के लिए पर जेई के लिए प्रहार भी आप परचेज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट, मतलब आपको अगर लग रहा है कि नहीं गेट से हम थोड़ा सा आपको जो अभी फिट हो रहा है, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई अपना स्टेट का AE एग्जाम या जेई एग्जाम के ऊपर भी आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पास आउट होके 1-2 साल हो गया है, देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो.
तो एक्सक्लूसिवली आपको अगर जेई जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर जेनिक जेई स्टडी चैनल। वहाँ पे मुकेश सर हमारा गाइडेंस देंगे आपको फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियोस, नॉन टेक्निकल के लिए। एंड उनका बहुत बड़ा टीम है, वो लोग आपको बहुत गाइडेंस करेंगे एंड आप लोग वहीं पे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।